Hello, good afternoon, all. Let's wait for a few more minutes to allow all the participants to join. Hello, we are just waiting for a few more participants to join.
Let's begin the session now. Hello, Namaste, good afternoon all. I, Anjali Rathod, is a research assistant at Spriha IPR Chair, Saurashtra University. A warm welcome to all of you to joining us for today's insightful webinar on industrial design. It is distinct honor and privilege to extend a warm and heartily welcome to our esteemed speaker, Ms. Aparna Pandharkar, ma'am. This session is organized by Spriha Saurashtra University and in collaboration with the SUSEC and IIC Saurashtra University. MEM is a registered Indian patent agent and SIPP startup facilitator with the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. MEM is deeply passionate about bridging technology and law through strategic intellectual property solution. As a patent consultant, she works with entrepreneurs, startups, and institutions to protect and maximize the value of their innovation through the expert patent drafting, filing, and commercialization strategies. MEM holds a gold medal in mechanical engineering from SGS ITS Indore and postgraduate diploma in patents law from Nalsar University, Hyderabad. She worked. She has served as an assistant professor at NIT Bhopal and a research scholar at IIT Delhi. MEM regularly conducts workshop and training sessions on IPR, technology transfer, and innovation management in collaboration with the AICT Innovation Cell Education and leading university across India. So, not taking much time, I invite and hand over the session to our esteemed speaker, Ms. Aparna Pandharkar, ma'am. Thank you so much, Anjali, and very good afternoon to all of you. Are you able to listen my voice, every one of you? Yes, ma'am. Anjali, can you? Yes, Yeah. ma'am. So, am I audible? My voice is clear. Yes, ma'am. Audible and visible also. Okay. Okay. Thank you. Then I'm without taking much time, I'm going to share the presentation and we'll start the talk up on design registration. So I'm sharing my screen. Just a second. Anjali, can you guide me that you are able to see my presentation? Yes, ma'am. It's Okay. visible. So shall I start? Okay. Yes. Okay. Okay. So a very good afternoon to all of you. So today's topic is, as all of you know, that it is about industrial design, which is a kind of intellectual property right. So there are a lot of intellectual property rights like patents, copyright, trademark, but industrial design has a different aspects. So it is not as like as patents and not as like as copyright and other, although it has it contain creative right, but still it is very different from the other right. So I'll explain it further. So the government of India is granting the right over a creative kind of design of any product which has some which has aesthetic appearance, which can be in the form of product, और यू कैन सी इट और यू कैन मेक इट इन इंडस्ट्री. तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट डिजाइन रजिस्ट्रेशन देती है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका कुछ अलग विजुअल अपेयरेंस होता है, जिनकी डिजाइन कुछ डिफरेंट होती है, उनको जो न्यू होती है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट देती है. ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही है. तो बिफोर दैट, क्योंकि आप सभी लोग मोस्ट ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम गुजरात, सो देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, इट्स नोन एज, आप सभी को पता है कि NID इज देयर. सो आपको मेरी स्लाइड बदलती हुई दिख रही है? अंजलि, कैन यू गाइड मी? No, ma'am. हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डू इट.
Just a second. I'm Okay. again uploading it. Now it's visible. चेंज होता दिख रहा है अंजलि? आप बता रहे हैं चेंज होता दिख रहा है? Yes, ma'am. Now change हो रही है. Okay. Okay, change हो रहा है. Okay, thank you. So, you know, there is an Institute of Design in Ahmedabad, National Institute of Design. So, that institute's co-founder gave his one of the famous quote is, if you don't make things for your own surprise, you become like a baker every day making the same round bread to sell. अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे डिजाइन में तो आप वही रह जाएंगे जैसे एक बेकर होता है, सारे ही बेकर फिर सेम राउंड ब्रेड बना के जैसे रोज सेल करते हैं, ब्रेड इज ब्रेड ओनली. तो अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं सोचेंगे, कुछ अलग नहीं सोचेंगे खुद को सरप्राइज करने के लिए, तो ये जो खुद को सरप्राइज करने की चीजें हैं, कुछ क्रिएटिव सोच के और कुछ अलग उसका डिजाइन तैयार करके वो जो हमें राइट देता है, दैट इज नोन एज अ डिजाइन रजिस्ट्रेशन. सो कई बार इसको कुछ लोग डिजाइन पेटेंट्स भी कहते हैं. इन इंडिया बहुत सारे लोग इसको डिजाइन पेटेंट कहते हैं, लेकिन इन इंडिया इट इज नोन एज registration of design and they are issuing the certificate of registration of industrial design. ये डिजाइन पेटेंट इंडिया में नहीं कहलाता है, बट बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके जुरिस्डिक्शन में इस राइट को डिजाइन पेटेंट भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल like we will understand about the industrial design. So we will go through the definition of design on a legal perspective. एक जो लॉ हमारा जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन को क्या कहता है हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे. सेकेंड हम उसके पर्पस एंड स्कोप को देखेंगे कि इसका कहाँ तक स्कोप है, ये क्या कवर करता है, डिजाइन राइट हमारे क्या क्या चीजें कवर करता है, उसका पर्पस क्या है. Third, role in product differentiation. What is the role of design registration in product differentiation? Because there are a lot of products in the market which are doing the same function. आप देखते हो different companies के laptops हैं market में, है ना. And every laptop is doing the same function, but उनके design is quite different. Same function means the जो primary function है एक laptop या फिर एक LED screen जो भी हम use करते हैं computer को use करने का, the primary function is same. But there may be certain aspects like जो अंदर aspects होते हैं technical, उसका RAM high होता है, किसी का different होता है, so that depends upon the price. But the other aspect is completely on the design perspective. उनका डिजाइन कैसा है, उनको ergonomic, आजकल बहुत मार्केट में ऐसी चीजें आती है जो कि आपको ergonomically रिलीफ देती हैं. चेयर आपकी ergonomically अच्छी है तो हम ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं जिनका डिजाइन बेटर होता है. तो अब अगर कोई मार्केट में 2 प्रोडक्ट्स हैं विच आर डूइंग द सेम फंक्शन बट हाउ टू डिफरेंशिएट इन इट, हम इसको भी समझेंगे. फिर इम्पोर्टेंस इन मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस. डिजाइन का क्या रोल है मार्केट में, मतलब भले ही सेम प्रोडक्ट हैं, जैसे फ्रिज अगर मैं देखूं, अगर मैं फ्रिज की बात करूं तो चाहे 2 कंपनीज हैं, मान लो मैं बात करती हूँ सैमसंग की और उसी के साथ बात करती हूँ सपोज वर्लपूल की, both are different companies, they are both selling fridge, रेफ्रिजरेटर, they both are in the market. बट क्या होता है जब हम कई बार डिजाइन फीचर पे भी जाते हैं कि हाँ उसका जो दरवाजा है वो इस तरीके से डिजाइंड है, या उसमें कुछ इस तरीके से जो उसकी अंदर की डिजाइन है वो इस तरीके से मैनेज की गई है कि वी कैन हम उसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं. तो इस तरीके से जब डिजाइन में डिफरेंशिएशन होता है तो भी हम प्रोडक्ट्स को खरीदना सीखते हैं, हम उस प्रोडक्ट को खरीदना प्रेफर करते हैं जिसकी डिजाइन बेटर होती है. तो अगर सिमिलर फंक्शन का प्रोडक्ट है तो और उसकी डिजाइन कुछ डिफरेंट है किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. तो इसीलिए डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो अगर मैं सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. सो इन अ लीगल सेंस एन इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल. ऑर्नामेंटल मीन्स वो मतलब दिखता कैसा है, ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट वो कैसा दिखता है, उसमें कहाँ पे कुछ कलर्स कैसे हैं, उसमें किस तरीके से पैटर्न्स बने हैं, उस पर डिपेंड करते हैं. जैसे मेरे अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा तो मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मोबाइल स्टैंड.
दिख रहा है अंजलि? कैन यू गाइड मी? आपको दिख रहा है? मेरा यस यस वीडियो भी दिख दिख रहा रहा है है मैम। साथ में? हाँ हाँ दिख रहा है सब। Yes. So this is a mobile stand. It is in my hand. ठीक है? तो ये अगर मैं इसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ और आप देखिए मार्केट में बहुत सारे जो मोबाइल स्टैंड है वो अवेलेबल हैं, बट हर मोबाइल स्टैंड का डिजाइन कुछ डिफरेंट है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट डिजाइन है, इसका भी डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। तो आई कैन गो एंड लाइक इसका मैं रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ डिजाइन का, मतलब मैं नहीं करा सकती, लेकिन जिस डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया होगा वो इसका रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल डिजाइन के तहत करवा सकता है। ठीक है? तो डिजाइन क्या कवर करती है? सिर्फ एस्थेटिक फीचर की ये आंखों को कैसा दिखता है, ये इसका पिक्चर जाता है और ये पूरा आपका जो आर्टिकल है वो कवर हो जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन में। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या क्या कवर होता है? जैसे मैंने ये प्रोडक्ट हाथ में लिया तो इसके 3 डायमेंशनल फीचर्स कवर होते हैं, कैसा दिखता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से इसका व्यू आइसोमेट्रिक व्यू लूं तो इसकी जितनी भी 3 डायमेंशनल फीचर है दैट विल कवर इन अ डिजाइन। सेकेंड, शेप ऑफ एन आर्टिकल, इसका किस तरीके से शेप है वो भी डिजाइन में कवर होगा। 2 डायमेंशनल फीचर, अगर कोई आप देखो जैसे मैं कहूँ कि किसी ने कोई कार्ड डिजाइन किया है, मतलब कोई ऐसा आप देखिए आधार कार्ड है या कोई स्पेशल काइंड ऑफ कार्ड है जो कि मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है, या किसी ने कोई अपना इस तरीके का कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड बनाया हो कुछ, तो दैट कार्ड कैन ऑल्सो भी उसको डिजाइन में हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं 2D में, कुछ 2 डायमेंशनल उसके फीचर लेके जो उसने यूनिक डिजाइन फीचर्स उसमें डाले हैं वो हम कवर कर सकते हैं। सेकेंड, हम पैटर्न्स को किसी मान लो आपने एक चेयर बनाई है बट उस चेयर में कुछ डिफरेंट पैटर्न्स डाले हैं, है ना। कुछ लोग जैसे आप यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर मैं गुजरात की बात करूँ या फिर राजस्थान की बात करूँ तो वहां पर काफी वुडन वर्क होता है। सो दे आर मेकिंग सम डिफरेंट पैटर्न्स ऑन वुड, और फिर वो उसके चेयर्स बनाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल्स बनाते हैं या फिर सेंटर टेबल्स बनाते हैं। तो जिस तरीके से वो पैटर्न बनाते हैं, दैट पैटर्न अगर वो पैटर्न न्यू है, उन्होंने किसी का कॉपी नहीं किया है, उन्होंने खुद उस पैटर्न को जनरेट किया है अपने मतलब क्रिएटिविटी से, तो उस पैटर्न को डिजाइन रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। लाइंस एंड कलर कॉम्बिनेशन भी उसमें आ जाते हैं। तो लाइंस, कलर, पैटर्न्स, फीचर्स, 2 डायमेंशनल फीचर या मैं 3 डायमेंशनल फीचर की बात करूं, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड इन डिजाइन। एस्थेटिक फीचर मेनली तो होता है एस्थेटिक फीचर, एस्थेटिक मतलब वो दिखता कैसा है। दूसरा विजुअल अपील, वो हमें देखने में कैसा लगता है, उसकी विजुअल अपील कैसी है, और कस्टमर का परसेप्शन कैसा है, इस पे डिजाइन डिपेंड करता है। कस्टमर परसेप्शन तब आता है जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने जाते हैं, वहां पर वो बाद में आता है। आप पहले डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर आपका डिजाइन में बहुत पोटेंशियल है तब आपका कस्टमर परसेप्शन दिखता है कि आपका डिजाइन बहुत अच्छा है तो उसको कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे। लेकिन डिजाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपसे इस तरीके की कोई बात नहीं की जाती कि ये कस्टमर को सूट करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। पर हाँ, कुछ ऐसे मैं आपको आगे केस लॉस कुछ समझाऊंगी, उसमें कहाँ पर कस्टमर का परसेप्शन आया वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है। एक 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल शेप या फिर उसके कुछ फीचर, पैटर्न, लाइंस एंड कलर को अगर हमने उसको यूनिकली डिजाइन किया है या अपनी क्रिएटिविटी से कुछ न्यू चीज बनाई है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वो है डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हैं मेरे पास। सो दिस इज फ्रॉम द कोका कोला। सो दे हैव 1 2 3 4 5 6 और 6 बॉटल्स हैं, एंड एवरी बॉटल हैज डिफरेंट डिजाइन एंड दे हैव अ रजिस्ट्रेशन ओवर इट। जो बॉटल का जो डिजाइन है उनका रजिस्ट्रेशन है। मैं अगर आपसे बात करूं कि आप हमने बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है, और हर कोल्ड ड्रिंक की हमको विजुअल अपीयरेंस में तो बहुत सारी बॉटल्स सिमिलर लगती हैं, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो जब हम अच्छे से देखेंगे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे मैं बात करूँ कोका कोला है, पेप्सी है, फैंटा है या फिर स्लाइस है, सबकी बॉटल में डिफरेंस होता है। एवरी
products that container or bottle is registered under this design registration. तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन है वो, चाहे हम एक छोटी चीज से लेके बड़ी चीज की बात करें, हर जगह डिजाइन रजिस्ट्रेशन की अहमियत होती है। चाहे मैं बात करूं फोन की, तो अगर मैं फोन की बात करूं तो इसमें जो टेक्निकल फीचर होते हैं वो पेटेंट्स के थ्रू सिक्योर होते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द एस्थेटिक फीचर ऑफ दिस फोन, सपोज ये मेरा फोन है, इसका मैं अगर डिजाइन देखूं तो देखिए, ये चूंकि एप्पल का फोन है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राउंड्स बने हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, बट देयर इज राउंड चैम्फर्स ओवर हियर। ऑल्सो यहाँ पे कैमरे की पोजीशन कैसी लगी है, उसके लिए कैसा स्लॉट दिया गया है, ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन design registration. After getting a patent also, I need to cover my product with the help of design registration. अब मैं आपसे बात करूं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कप्स दिए हुए हैं, कॉफी और टी कप्स। सो इनके भी डिफरेंट जो शेप्स होते हैं, दैट कैन बी कवर्ड अंडर अ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सपोज किसी ने ऐसा कप मैन्युफैक्चर किया जिसमें मतलब जो 2 सेक्शन में, अगर किसी को मैं कहूँ कि जो कप है उसको इस तरीके से 2 सेक्शन में डिवाइड किया कि एक तरफ आप कॉफी फिलअप कर लीजिए और एक तरफ आप चाय फिलअप कर लीजिए, आपको जो पीना है आप पी सकते हैं सिंगल कप में। सो दैट इज अ यूनिक डिजाइन थिंग, है ना। तो उसको भी आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कवर कर सकते हैं। सो ये डिजाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बातें हुई। और किस तरीके से डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2D डिजाइन को भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, पैटर्न्स के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में एंड कलर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 2D डिजाइन फीचर को डिजाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्टर किया जा सकता है। वैसे 3D डिजाइन को रजिस्टर शेप, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के आधार पे 3D डिजाइन रजिस्टर हो जाते हैं। इवन समटाइम्स 2D एंड 3D एलिमेंट्स एज अ कॉम्बिनेशन, कई बार ऐसा होता है कि 2D एंड 3D कॉम्बिनेशन में हम कर रहे हैं, तो वो भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उसको रजिस्टर किया जा सकता है। अब क्यों डिजाइन का इतना इम्पोर्टेंस है? डिजाइन का इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे कोई नया इन्वेंशन नहीं कर पाते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इन्वेंशन करो। सपोज अब मैं बात करूं कि कार्स, मार्केट में बहुत सारी कार्स आ रही हैं, तो जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, मतलब सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूँ कारों में जो इन्वेंशन हुआ है, सो दैट इज ऑटोनॉमस कार, है ना। तो ऑटोनॉमस कार अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब वो बेहतर है कार की टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपको कार में कोई न्यू इन्वेंशन करना पड़ेगा तो वो आपको उससे बड़ा करना पड़ेगा, मतलब ऑटोनॉमस कार के अलावा और कौन से फीचर्स आप उसमें ऐड करते हैं, तब आप कहेंगे कि हाँ कोई नया इन्वेंशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कार। लेकिन आपको छोटे डिजाइन ऑल्टरेशन करके आपकी कार को, आप देखेंगे हर कार का एक यूनिक डिजाइन होता है। जैसे मैं टाटा की कार की बात करूं, या फिर मैं मारुति सुजुकी, या फिर जो अभी मार्केट में जितनी अवेलेबल हैं कार्स, उन सब की बात करूं, तो एवरीबडी हैज डिस्टिंक्ट डिजाइन। सबका एक अलग डिजाइन है, एक अलग डिजाइन पैटर्न है। किसी का पिछला हिस्सा बड़ा होता है, किसी का आगे का हिस्सा बड़ा होता है, किसी का सामने का कुछ डिजाइन फीचर्स आर डिफरेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ओनली, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है किसी कार के टेक्निकल फीचर बहुत अच्छे ना हो, बट उसका लुक, उसका शेप आपको ज्यादा पसंद आता है, उसमें जो पोजिशंस हैं, अगर आप उसके अंदर इंटीरियर देखेंगे तो कई बार वो इंटीरियर भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो इसीलिए कई बार आपकी उसमें टेक्निकल फीचर कम भी हो तो भी एस्थेटिक फीचर ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं विच हैज मोर अपीलिंग ऑन आई, तो जो आपकी आई को ज्यादा अपील करता है। सो 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 उस तरीके के प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ कि ये ड्रेसिंग टेबल है, तो इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना। मे बी आप, अगर कोई बहुत स्पेस कॉन्शियस है तो वो कहेगा कि अरे मुझे इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए बिकॉज इट इज टेकिंग मोर स्पेस इन माई हाउस, सो आई डोंट वांट दिस वन। बट somebody जिसको इसका डिजाइन बहुत पसंद आएगा, ही wants to buy that kind of thing, है ना। तो ये कहें
की डिज़ाइन जो है ये बहुत एम्फेसिस मतलब करती है प्रोडक्ट परचेजिंग में, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल सेक्टर में या एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो स्लाइट चेंजेस करके अगर प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं एक यूनिक डिज़ाइन बना के, तो गवर्नमेंट उनको एम्फेसिस करती है कि आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन लीजिए, तो इट विल बी इजी टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए। अगर आप अभी मैं खोलूँ, मीशो खोलूँ या फिर कोई न्यू वेबसाइट है अमेजन, या इस पे इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, और वो कुछ घर की, अगर मैं हाउस होल्ड आइटम्स की बात करूं, जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में अवेलेबल हैं, तो वो कस्टमर को बहुत अपील करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन से हम कम्पीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे उसमें कम टेक्निकल फीचर है या बहुत भारी टेक्निकल फीचर नहीं है, बट इफ़ वी आर डूइंग सर्टेन चेंजेस इन डिज़ाइन एंड लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो ये कई बार ये कस्टमर को काफ़ी अपील करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, so that's why design is very important. So इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर करता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम हैं या फिर कुछ हाउस होल्ड गुड्स हैं जो मैंने आपको बताया, फर्निशिंग से लेकर बहुत सारी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, कंटेनर्स में यूज़ होता है। अगर मैं लाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात करूँ, वहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होता है। अप्रैल में आप देखिए, जब भी मैं डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन में ज़्यादातर खोलती हूँ, तो मैं बहुत सारे उसमें फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनके डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जो पब्लिश होते हैं पेटेंट ऑफिस के ऑफिशियल जर्नल में, तो मैंने उनमें कई फेमस फैशन डिज़ाइनर्स के नाम भी देखे हैं, जैसे साब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, उनकी जो ज्वेलरी है एंड उनके जो एप्रल हैं, उनको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो रजिस्टर कर पाते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं और टेक्सटाइल सेक्टर में बात करूं, तो जैसे मैंने कहा 2D पैटर्न्स हैं, आप देखेंगे कई बार जो डिफरेंट हमारी बेडशीट्स होती हैं या हमारे कर्टेन होते हैं, उस पे कुछ यूनिक डिजाइन हमें मार्केट में मिलता है, तो दैट डिजाइन इन 2D पैटर्न इज कवर्ड अंडर द डिजाइन रजिस्ट्रेशन। ऑल्सो जैसे ग्राफिक सिंबल्स हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, वहां पर भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस होती है। सो दिस इज एन एग्जांपल। देखिए, ये एक पैकेजिंग डिजाइन मतलब पैकेजिंग प्रोडक्ट है। इट हैज अ यूनिक डिजाइन, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बिस्किट्स को पैक किया है। सो हो सकता है इसमें डिफरेंट काइंड के बिस्किट्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर के बिस्किट्स हैं, जिनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से इसका पैकेजिंग पूरा बनाया है, पैकेज बनाया है। सो इट कैन बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सो इस तरीके से जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, उनमें भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आपने कोई डिजाइन को रजिस्टर कर लिया, सपोज इस पैकेज को मैंने रजिस्टर कर लिया मेरी इंडस्ट्री ने, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और हमने एक यूनिक डिजाइन बना के इस पैकेज को बनाया और हमने इसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन ले लिया। सो अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दैट लाइक फूड आइटम, हम लोग इस पैकेज का भी, अगर somebody wants कि नहीं, हमको भी आपका इस पैकेज का लाइसेंस दे दीजिए, so we wants to use it, so we can sell this packaging material to the other company, और या वो उनके पास खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटी है, so we can लाइसेंस इट, और हम उनको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी यूनिक प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसके डिजाइन को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कमर्शियल एस्पेक्ट, कि आप आईपी क्यों कर रहे हैं, मतलब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों ले रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने उसमें समय वेस्ट किया, आपकी एनर्जी वेस्ट की, आपका लेबर वेस्ट हुआ। तो जब आपने अपना इतना सारा उसमें दिया है इनपुट, तो गवर्नमेंट शुड गिव यू द राइट आपकी क्रिएटिविटी के लिए। बट वो राइट सही मायने में तब आप उसका फुल उपयोग कर पाते हैं जब आप उसको कमर्शियलाइज करते हैं। और कमर्शियलाइज आप किस वे में करेंगे, कि आप उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है अगर मार्केट में, तो अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी को उस प्रोडक्ट उसका लाइसेंस करके उस व्यक्ति को जो आपसे लाइसेंस लेना चाहता है उसको देकर और उसकी मॉनेटरी फायदा आप उठा सकते हैं, उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं।
तो इसीलिए हो सकता है कि आप पैकेजिंग इंडस्ट्री से भी नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके पर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आप घर पे बैठे हैं और आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसको देख के आपके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको इस तरीके से एक पैकेज आइटम मैं बना सकता हूँ, या मैं इस तरीके से कोई क्रिएटिव प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो उसको आप डिजाइन रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है, आपका उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट आपका डिजाइन अगर सच में अच्छा हुआ तो सम इंडस्ट्री पर्सन कैन कम और आपसे वो डिजाइन का लाइसेंस ले सकता है। तो अब इस तरीके से आप अपने आईपी को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी यूनिक चेयर्स की डिजाइन है, डिफरेंट चेयर। तो ये इस चीज को भी आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट चेयर है, उसकी डिफरेंट डिजाइन है, उसके पैटर्न्स डिफरेंट है, तो उसके 3D पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नाउ डिजाइन कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको बहुत सारे टेक्निकल इफेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं कि कार में बहुत सारे जो हमारी कार होती है उसमें बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, उसमें भी आप देखिए कि जो डिज़ाइन है, अगर मैं इस तरीके से कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाऊं जो कि ergonomically बहुत अच्छा हो, जिसको जैसे अगर मैं जो स्टीयरिंग है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करूं कि जब आप उसको ग्रिप करते हैं तो बहुत आसान होता है, आपका हाथ ना फिसले। तो कई बार जो डिज़ाइन होता है वो टेक्निकल इफेक्ट भी देता है। जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज में इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि कम स्पेस में ज्यादा सामान आ जाए। तो इस तरीके से भी जो जो हमारी डिजाइनिंग है वो टेक्निकल इफेक्ट को भी क्रिएट करती है। अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन की, तो मैंने अगर इस तरीके से डिजाइन बनाया कि इट कैन फिट इनटू अ कबर्ड ऑल्सो और वहीं पर आप ऑपरेट कर सके, तो ये जो डिजाइन है ये टेक्निकल फीचर भी दे रहा है और उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ जाती है उस केस में। फिर मैं बात करूं कि जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो बहुत हेल्प करती है स्मॉल बिजनेस ओनर और स्टार्टअप्स को। क्यों हेल्प करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई यूनिक डिजाइन है उसको रजिस्टर करा लिया, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, आप एक स्मॉल जस्ट स्टार्ट किया है आपने बिजनेस, बट इफ समबडी लाइक्स योर डिजाइन और उसके पास ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कोई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, एंड ही वांट टू take a license of manufacturing that particular product that you have designed, तो उस केस में आपको काफी मॉनेटरी फायदा होता है, आपको काफी कमर्शियल गेन होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि स्टार्टअप या फिर एक साधारण व्यक्ति के लिए भी, अगर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा डिजाइन आता है, सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने राइट्स को समझें। तो बेसिकली जो स्मॉल ओनर्स होते हैं, जो छोटा छोटा हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वो भी अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल डिजाइन के तहत रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि उनका डिजाइन अगर कोई कॉपी करे, है ना, तो वो शो कर सकते हैं कि हमारा रजिस्टर है। इफ यू वांट टू कॉपी आवर डिजाइन यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम अस। तो उधर से भी वो एक मॉनेटरी फायदा उठा सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, तो इसको भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्टर किया जा सकता है। दीज आर ऑल्सो लाइक जो चेयर होती है, आप यहाँ से, ये तो गुजरात में ही मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, वहाँ का कुछ फेमस फर्नीचर है उनका, वो मैन्युफैक्चर होता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं जो बहुत सुंदर सुंदर मतलब बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, उनको हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं और उस पर अपना राइट सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका क्रिएटिव राइट है जो उन्होंने क्रिएट किया है, उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। तो उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो डिजाइन है, वो सिक्योर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। अब डिजाइन रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए भी। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो पीएनजी के प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो जितने भी प्रोडक्ट है उनके, अगर मैं टाइड की बात करूँ, या उनके बहुत सारे शैम्पू या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं उनके। सो एवरी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, जो उनका बॉटल्स होती हैं, डिजाइन जो उन्होंने बॉटल की डिजाइन बनाई है, वो इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि बहुत अपीलिंग है, वो कस्टमर को अपील करता है। दूसरा, उस वजह से उनके प्रोडक्ट भी ज्यादा सेल होते हैं, क्योंकि जो डिजाइन है वो देखकर भी
कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो अगर आपका डिज़ाइन बेहतर है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर आप कुछ सामान जो आप बेच रहे हो वो तो रख रहे हो, उसका जो एस्थेटिक फीचर है अगर वो बहुत अच्छा है, उससे आपका प्रोडक्ट फॉर्म एनहेंस हो जाता है, उसका फंक्शन को भी वो एनहेंस करता है, यूजर एक्सपीरियंस एनहेंस होता है और उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। और इसीलिए जैसे बिग कंपनीज हैं वो बहुत सोचती हैं जब वो अपने प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो भी डिजाइन करती है उस समय भी, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, अगर वो रिसाइक्लेबल है तो वो भी उन्हें वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। सो दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं वो लोग, ठीक है। और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो जब मतलब भीड़ से अलग दिखें, तो इसीलिए एवरीबडी इज मोर थिंकिंग अबाउट द डिजाइन। जो बिग कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट जो हैं वो बाकी प्रोडक्ट से अलग दिखें, उनका डिजाइन सबसे अलग हो। तो इसलिए वो काफी डिजाइन थिंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं और अपने बेहतर से बेहतर डिजाइन को मार्केट में लेकर आते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल जो डिजाइन है वो बहुत इफेक्ट करती है बिजनेस को। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इट। उसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका वो पैकेजिंग सिक्योर हो जाएगा और कोई और कंपनी उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अब ऐसे भी डिजाइन होते हैं जैसे हम डिसेबल लोगों के लिए, तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बहुत सारे यूनिक अवार्ड्स वो लोग ग्रांट करते हैं। तो दे हैव ग्रांटेड, ये A2B ट्राईसाइकिल है, इनको इन्होंने ये जो डिजाइन है इसको उन्होंने अवार्ड भी दिया था यूनिक डिजाइन के लिए। ये ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसे जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, who are not able to drive साइकिल, जो नॉर्मल साइकिल होती है, उसके लिए उन्होंने साइकिल को इस यूनिक फॉर्म में डिजाइन किया था। सो डिजाइन देखिए लोगों की लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप कुछ इस हम घर में भी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ करके कई बार छोटी छोटी चीजों से डिजाइन बनाते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? तो क्योंकि हमारी जिंदगी आसान बने। तो वैसे ही जो डिजाइन है वो बहुत सारे जिंदगियों की या लाइफस्टाइल को भी आसान बनाती है। तो जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने इस तरीके से साइकिल डिजाइन किया था और इसीलिए डिजाइन जो है वो लोगों की जिंदगी को बहुत अफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो एल्डर लोगों के लिए भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी डिजाइन में है, तो उनको लोग ज्यादा परचेज करते हैं। सपोज अभी मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, सो आई बॉट दिस चेयर बिकॉज इट इज ergonomically वेरी गुड, मतलब मुझे इसमें कंफर्ट मिला, इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई ट्राइड सो मेनी चेयर्स एंड आई फाउंड दिस वन, क्योंकि इसका डिजाइन सबसे यूनिक था। सो आई इन्वेस्टेड इन इट, क्योंकि ये कॉस्टली थी बट मैंने क्यों इसको खरीदा? क्योंकि इससे मुझे कंफर्ट मिलता था। इसका जो डिजाइन इस तरीके से बना है कि it comforts me, so that's why I purchased this product. So it is very important कि जो कई बार अगर आपका डिजाइन है वो कंफर्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप कोई भी कस्टमर जब जाता है बाहर खरीदने, तो आपके अगर आपका कोई यूनिक डिजाइन है तो वो जरूर उसको ट्राई करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक to create something unique, to create some unique design and do register it to secure your creativity. नाउ अगर मैंने जैसे आपको बताया फैशन इंडस्ट्री में भी डिजाइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पैटर्न्स दिख रहे हैं ज्वेलरी में, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो उनकी मतलब डिजाइनिंग है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, दैट कैन बी सिक्योर्ड विथ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। इवन द अप्रैल डिजाइन इज ऑल्सो, जैसे यहाँ पर जो डिजाइन किया गया ड्रेसेस को जिस यूनिक पैटर्न में उसमें जो वर्क किया गया है, दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सो दीज आर द टू थिंग्स। इसको वाइपो का बेस्ट डिजाइन अवार्ड मिला था। सो इसमें बेस्ट डिजाइन कैसे है कि फिलिपिनो से किसी ने जो ये सोफा, यूनिक सोफा तैयार किया जिसमें कोई एबेका रोप एंड स्टील एंड पाम, बुरी पाम से उन्होंने ये सोफा बनाया। और इसका चूंकि एक यूनिक डिजाइन था, मे बी कंफर्ट तो बाद में आता है, लेकिन जब डिजाइन आपको यूनिक लगता है, सो ही हैज ग्रांटेड अवार्ड फॉर दैट प्रोडक्ट। और सेकंड इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था वेस्टो स्टो, सो इसको भी बेस्ट डिजाइन अवार्ड मिला है। तो ये 25 लीटर
का जो बेस्ड ऑन बॉक्स था, पेंट बॉक्स, उसका उन्होंने पेंट कैन से उन्होंने ये बनाया है। तो ये प्री हीट करता है इनकमिंग एयर से और स्टोव की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये पोर्टेबल काइंड ऑफ स्टोव उन्होंने डिजाइन किया। सो दैट डिजाइन, और वाइपो ने इनको बेस्ट डिजाइन अवार्ड दिया है इस डिजाइन के लिए। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको साइट करके बताया कि कई बार बहुत छोटे छोटे हम घर में भी बहुत चेंजेस करते हैं और उससे कुछ एक नया डिजाइन तैयार होके आ जाता है। हमें नहीं लगता कि ये यूनिक है, बट वी कैन ट्राई एंड गेट इट रजिस्टर्ड, ताकि हमारे नाम से भी एक डिजाइन रजिस्टर हो जाए और कभी हमें उसको कमर्शलाइज करना हो तो हमारे पास एक ऑप्शन रहे। नाउ अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो जो हमारी पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट है, आईपी इंडिया की वेबसाइट है, वहां पर डिजाइन एक्ट एंड डिजाइन रूल्स, अभी तक तो मैंने आपको डिजाइन के बारे में समझाया कि डिजाइन्स कैसे होती हैं, क्या होती है, हम कैसे चीजों को रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब किन किन चीजों पे डिजाइन रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। नाउ वी गो टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डिजाइन. So Design Act came in 2000. So Design Act 2000, the Design Act 2000 and the Design Rules 2001. So it is there on the website. You can download it. अगर आपको पढ़ना है तो आप ये the Design Act को पढ़ सकते हैं, आप Design Rules को पढ़ सकते हैं, जो कि amendments भी हुए हैं उसमें बहुत सारे. So it is available on the website and you can download and read it. Now सो डिजाइन जो एक्ट है वो हमें लॉ के बारे में बताता है, राइट्स के बारे में बताता है और प्रोसीजर्स के बारे में बताता है कि जब आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या क्या प्रोसीजर होंगी, आपके कहाँ राइट कहाँ तक डिफाइन होंगे। रूल्स हमें बताता है प्रोसीजरल डिटेल्स, जो आप प्रोसीजर फॉलो करोगे वो लॉ में दिया है, लेकिन जो रूल्स हैं वो डिटेल्ड फॉर्म ऑफ लॉ है। ठीक है, सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिटेल फॉर्म ऑफ आपको पढ़ना है तो आप रूल्स को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्ट से समझ सकते हैं कि आपके क्या क्या राइट सिक्योर होते हैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू। सो दोनों ही क्यूमुलेटिवली ऑपरेट होते हैं। सो नाउ जो डेफिनेशन ऑफ डिजाइन लिखी है अकॉर्डिंग टू the Design Act of 2000, they have written that features of shape, configuration, pattern, ornament और composition of lines and color. So जैसा मैंने आपको पहले बताया बस वैसे ही लॉ में लिखा हुआ है, बस जस्ट जब हम लीगल एस्पेक्ट की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। मस्ट अपील टू एंड जज सोलली बाय द आई, जो डिजाइन अगर देखा जाए तो सिर्फ आई के थ्रू ही जज किया जाता है। डिजाइन में ट्रेडमार्क्स एंड आर्टिस्टिक वर्क नहीं आता, ना ही प्रॉपर्टी मार्क आता है। मतलब अगर आप आर्टिस्टिक कोई वर्क कर रहे हैं, सपोज आप बुक लिख रहे हैं या आप पेंटिंग बना रहे हैं, सो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइट। आप उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, है ना ये। और ट्रेडमार्क को भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते डिजाइन रजिस्ट्रेशन से, इसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी मार्क भी है तो इट कैन बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क, बट डिजाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब जो हमारा लॉ कहता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं डिजाइन के तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मतलब आपका, हम कहते हैं ना, चलो आप जैसे आप फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो उसका क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज जो है 6 इयर्स की हो जाना चाहिए जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा। तो वैसे ही बिफोर फाइलिंग, लाइक बिफोर यू आर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, यू शुड नो कि आपको पता हो कि क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज न्यू और ओरिजिनल, आपका डिजाइन नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का कॉपी किया और उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपका जो भी आइडिया है डिजाइन को लेके वो न्यू होना चाहिए। नॉट पब्लिश्ड बिफोर फाइलिंग प्रायोरिटी टेक, जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उसके पहले आपने उसको कहीं पब्लिश ना किया हो। सपोज आपने कुछ यूनिक चेयर बनाई और 6-7 महीने पहले किसी ने आपकी फोटो, चेयर की फोटो डाल के न्यूज़पेपर में डाल दिया तो ये पब्लिश हो गया, मतलब पब्लिक को पता चल गया। ठीक है, सो बिफोर लाइक इसको पब्लिकली ओपन करने के पहले गो एंड फाइल, लाइक गेट रजिस्ट्रेशन ऑन दैट प्रोडक्ट, देन ओनली आप उसको पब्लिसाइज कीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब आपकी डिजाइन अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कॉपी कर लिया और एग्जैक्ट वैसा ही डिजाइन ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा उसमें डिस्टिंग्विश फीचर दिखने चाहिए, मतलब एक एवरेज
व्यक्ति को अगर मैं बात करूं कि आप किसी को भी सामने लाएं और मान लो आपने कोई डिजाइन कॉपी किया है और उसके सामने वो दो प्रोडक्ट रखें, जिस एक तो वो जो ओरिजिनल है और दूसरा आपने कॉपी किया है, अगर उसको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता, इसका मतलब आप नया डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अगर आपने उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किए कि हाँ बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है, तब आप उस पर डिजाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और स्कैंडलस मैटर नहीं होना चाहिए, लाइक इट शुड नॉट हैम्पर द मोरालिटी, लाइक और जो पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें ना हो जिससे कुछ पब्लिक को नुकसान हो, जो स्कैंडलस मैटर में आता हो, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो now we come on to the registration process. So कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है डिजाइन का, अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो जब डिजाइन रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, अगर आप किसी पेटेंट कंसल्टेंट या डिजाइन कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जो पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट है, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं आपकी पेटेंट एप्लीकेशन, आपने खुद डिजाइन बनाया और आप खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो ई साइन होता है या फिर मैं कहूँ कि डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है लॉगिन करने के लिए। उसके बाद आप लॉगिन करके वहाँ रजिस्टर करिए, आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे आप सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आप फिर उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके देन आपको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले फॉर्म 1 आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जिसमें आपकी डिटेल, एप्लीकेंट की डिटेल, आपके साथ और कितने एप्लीकेंट हैं उनकी डिटेल्स, आपका क्या एड्रेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 1 में डालनी पड़ेगी। जब आप ये डाल देते हैं, फॉर्म 1 के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद कंट्रोलर जो है, जो पेटेंट ऑफिस में कंट्रोलर जजेस होते हैं, मतलब उनको एक तरीके से कंट्रोलर बोला जाता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एग्जामिनर्स और जजेस होते हैं जो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन को, जो आपकी डिजाइन एप्लीकेशन है उसको, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में उनको लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपने हमें फिगर्स अच्छे से नहीं प्रोवाइड किया, हम लोग उसको ढंग से नहीं समझ में पा रहे हैं, तो जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको उनका रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई करने के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी है या अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हेयरिंग बुलाई जाती है। हेयरिंग में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी कंट्रोलर होता है उनसे बात करनी होती है। फिर वो आपको जो भी सजेशंस देते हैं, जो भी आपको चेंज करने का बोलते हैं, अमेंडमेंट्स करने का बोलते हैं, आपको करके उनको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट हो जाता है। अगर ऐसे बहुत कम केसेस में, अगर जैसे मैंने कहा स्कैंडलस या कुछ इस तरीके की बात है, या आपने कोई कॉपी करके डाला है, उसी केस में आपकी डिजाइन एक्सेप्ट नहीं होती, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट होने के बाद डिजाइन सर्टिफिकेट जनरेट होता है और फिर वो जो पेटेंट ऑफिस का ऑफिशियल गैजेट निकलता है उसके अंतर्गत आपकी डिजाइन का पब्लिकेशन हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको फॉर्म 1 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो फॉर्म 1 के साथ रिप्रेजेंटेशन शीट्स अपलोड होती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन शीट्स जो होती हैं उसमें डिफरेंट व्यूज ऑफ आपके प्रोडक्ट्स के जाते हैं। अगर आपका 3D प्रोडक्ट है तो उसके 7 व्यूज जाते हैं, आपका 2D प्रोडक्ट है तो उसके व्यूज जाते हैं। और आपको डिजाइन की क्लास भी डिसाइड करनी पड़ती है फॉर्म 1 में। तो क्लासेस कुछ डिजाइन के डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जैसे फूड आर्टिकल है तो उसका एक क्लास नंबर होगा, स्टेशनरी आइटम है तो उसका एक क्लास नंबर होगा। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, आप उसको देख के डिसाइड कर लीजिए कि ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कोई पैकेजिंग आइटम है तो आप उसमें देखेंगे कि ये पैकेजिंग आइटम है, तो आप उसमें जाके क्लिक करके वो वाली क्लास आपके प्रोडक्ट में डालेंगे। हर रिप्रेजेंटेशन शीट में आपको एक नॉवेल्टी स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो न्यू है। मैं यहाँ पर अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि कैसे शीट्स बनती है। और फी आपको भरनी पड़ती है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जो है डिजाइन एक्ट उसमें दी हुई है, रूल्स में दी हुई है, सॉरी। सो यू कैन गो एंड चेक कि कितनी फी है। नॉर्मली जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं या एमएसएमई है, उनकी फीस अभी 1000 है फाइलिंग फीस, and for the other applicant it is 4000. So
जो रिप्रेजेंटेशन शीट होती है वो कैसे बनती है, उसमें A4 साइज का ड्यूरेबल पेपर लेना है, एग्जैक्ट सिमिलर व्यू होना है। एग्जैक्ट सिमिलर व्यू से मैं क्या मतलब समझूंगी, जैसे मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया था पहले, तो इस प्रोडक्ट का अगर मैंने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से प्लेस किया है, तो अगर मान लो मैं फ्रंट व्यू ले रही हूँ तो फ्रंट व्यू यहाँ से ले रही हूँ, तो बैक साइड व्यू यही है। ऐसा नहीं है कि बाद में आप ऐसा कर दो और बोलो नहीं अब तो हमारा बैक व्यू ये आ रहा है। अगर आपने इसको फ्रंट व्यू लिया है तो आपका बैक व्यू ऐसा ही आना चाहिए। जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को रखा है उसी तरीके से सारे डायग्राम्स आपके उस शीट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से चेंज कर दो कि नहीं अभी मेरा फ्रंट व्यू ये था, अब मेरा फ्रंट व्यू ये हो गया है तो मैं बैक व्यू ऐसा लूंगी। मतलब व्यूज आपके मैच करने चाहिए उस प्रोडक्ट से। देन आपको 7 व्यूज, जैसे इसमें कहा, पर्सपेक्टिव, फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये सारे व्यूज यहाँ पे लगेंगे। रिपीटिंग पैटर्न मस्ट शो फुल रिपीट। जो रिपीटिंग जैसे 2D शेप है उसमें कुछ रिपीटिंग पैटर्न अगर बने तो वो पूरा रिपीट पैटर्न दिखना चाहिए, इस तरीके से शो होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से अगर आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या आप करेंगे, सबसे पहले तो आपको डिजाइन सर्च करना चाहिए कि आपकी डिजाइन में नॉवेल्टी है या नहीं। वहां पे पब्लिक डेटाबेस अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। वहां पे आप आपका ऑफिशियल जो डेटा अवेलेबल है उसमें आप अपनी डिजाइन चेक कर सकते हैं कि न्यू है या नहीं, या आप उन्हें रिक्वेस्ट भी फाइल करके एक सर्च रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि डिजाइन हमारी कैसे न्यू है, ये जानने के लिए हम क्या देखेंगे, उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस देखेंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका शेप देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और पैटर्न देखेंगे। अगर वो हमें सेम दिख रहा है तो हमारी डिजाइन न्यू नहीं है। अगर उसमें डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देन वी कैन गो एंड फाइल आवर डिजाइन रजिस्ट्रेशन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें कैड या फिर हाई क्वालिटी लाइन ड्राइंग्स या फिर कैड इमेजेस या फिर हम एक्चुअल प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं मल्टीपल व्यू, एंड देन उसको पेस्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन शीट में। और हर व्यूज के नीचे एक नॉवेल्टी स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। नॉवेल्टी रिसाइड्स इन द शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, add disclaimer for mechanical contrivance, and also add this disclaimer for trademark, word, letter, numeral, extraneous matter, etc. if any is depicted in the representation of the design। अगर आपका कोई ट्रेडमार्क और यहाँ पे कोई इस तरीके का वर्ड आ रहा है तो आपको उसके लिए भी डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि हम इसमें किसी तरीके का वर्ड को डिजाइन के अंतर्गत सिक्योर नहीं कर रहे हैं। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन शीट तैयार हो जाए तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन सर्च करेंगे कि आपको किस क्लास में आपकी डिजाइन डालना है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ डिजाइन या फिर नेचर ऑफ आर्टिकल। लोकार नो क्लासिफिकेशन इंडेक्स है, उसमें आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा क्लास में आपकी डिजाइन को रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई हाउस होल्ड गुड है या फिर कोई क्लीनिंग इक्विपमेंट है, हाउस क्लीनिंग इक्विपमेंट है, तो वो आपका जो डिजाइन है वो उस क्लास में रजिस्टर होगा। या फिर आप देखेंगे कोई पैकेजिंग मटेरियल है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मटेरियल है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मटेरियल है, तो आपका डिफरेंट क्लासेस दी हुई है जिसमें आपको डालना है कि हाँ हमारा ये वाला क्लास नंबर है, ठीक है, सिलेक्ट करना है मतलब। अब जैसे मैंने बताया फॉर्म 1 आपने भरा जहाँ पे आपने एप्लीकेंट की डिटेल डाली, उनका एड्रेस डाला और क्लास डिसाइड किया। अगर आप किसी पेटेंट अटर्नी या डिजाइन अटर्नी से आपका करवा रहे हैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन, उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, वो अटॉर्नी ही सबमिट करता है। फॉर्म 21 उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है। और प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, आप कोई प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आपने कहीं और डिजाइन की फाइलिंग किया है तो। अगर आप एज ए स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट डालना पड़ता है फॉर्म 28 में। स्टार्टअप जो आपका अगर रजिस्टर है तो वो आपको उसके एविडेंस के लिए वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप प्रिस्क्राइब फी पे करके जो ई फाइलिंग पोर्टल पे है वहां पे आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है।
द नेक्स्ट थिंग, आपका जब फॉर्म जमा हो जाएगा डिजाइन, उसके बाद आपकी डिजाइन को ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन होगा. यू हैव नो नीड टू फाइल फॉर एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट. फॉर्म 1 के साथ ही वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप. कुछ मेरे ख्याल से जिस दिन आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं उसके विद इन 2 मंथ्स आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है. अदरवाइज अगर आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं आती है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे. तो इन इन सम केसेस 3 to 4 मंथ्स में आपको डिजाइन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम Indian Patent Office side. If there is no objection, you will get a grant of your design registration within 3 to 4 months. If there is any objection, you need to reply it. आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई करना पड़ता है. अगर आपके रिप्लाई से कंट्रोलर सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद वो एग्जामिनेशन लेकर आपकी जो डिजाइन है उसको ग्रांट कर देते हैं डिजाइन सर्टिफिकेट. सो इट विल टेक 6 to 7 मंथ, और कुछ केसेस में ज्यादा भी लग जाता है. अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो हियरिंग बुलाते हैं. हियरिंग में आपको फिर डिफेंड करना पड़ता है आपकी डिजाइन को, और अगर सब कुछ सही रहा तो इट विल टेक लाइक 9 to 10 months टू गेट अ ग्रांट ऑन डिजाइन सर्टिफिकेट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिजाइन सर्टिफिकेट. जब आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ये मेरा ही एक डिजाइन है जिसपे डिजाइन रजिस्ट्रेशन मुझे मिला था 2022 में. सो इस तरीके से डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है पेटेंट ऑफिस के थ्रू. ईमेल पर ही आता है, आपको फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं. देन उसके बाद जो रजिस्टर्ड आपकी डिजाइन है वो पब्लिश होती है ऑफिशियल डिजाइन जर्नल में आफ्टर गेटिंग द डिजाइन सर्टिफिकेट. Then this is a kind of representation sheet I am talking about. तो इस तरीके से representation sheet बनानी पड़ती है. यहाँ पर आपको जो भी, जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पेज आपको दिखाया है रिप्रेजेंटेशन शीट का. ऐसे 7 पेजेस बनेंगे जिसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट व्यूज हैं. जैसे यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव व्यू दिखाया, इसके बाद आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसी प्रोडक्ट का सारे 7 शीट्स में दिखाना पड़ेगा. आप यहाँ देख सकती हैं नंबर ऑफ शीट 7 है. दिस इज शीट नंबर 1. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन. यहाँ पर देखिए नॉवेल्टी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नो क्लेम इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैकेनिकल और अदर एक्शन ऑफ एनी मैकेनिज्म whatever or in respect of any mode of principle of construction of the article. यहाँ पे हम आर्टिकल के प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कुछ भी राइट सिक्योर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके एस्थेटिक फीचर पे सिक्योर कर रहे हैं. इवन हम यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर रही हूँ. अगर आप मान लो कोई कलर कॉम्बिनेशन भी करना चाहते हैं, अगर कोई कलरफुल चीज है जो आपको उसके कलर्स भी सिक्योर करने हैं, सो यू कैन डिलीट this line from representation sheet. So this is a kind of like representation sheet that you are that you are making for applying for a design registration in India. So डिज़ाइन क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको जैसे बता रही थी. So जो डिज़ाइन क्लासिफिकेशन है ये लोकार्नो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, जिसमें 32 क्लासेस हैं और फिर 32 क्लासेस की भी सब क्लासेस हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जो क्लास फर्स्ट है उसमें फूड स्टफ्स आते हैं. क्लास 2 में क्लोथिंग आती है. तो क्लोथिंग में बहुत सारी चीजें, क्लोथिंग में जितनी भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग होती है वो सारी चीजें आती है. फिर क्लास 9 में पैकेजिंग और कंटेनर्स के बारे में बात की गई है. तो पैकेजिंग में कैसे पैकेजिंग, कि आप पेपर पैकेजिंग की बात कर रहे हैं या फिर कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या वो मेटल कंटेनर्स हैं, किस तरीके के कंटेनर्स है, बिग कंटेनर्स है, स्मॉल कंटेनर्स है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन सब क्लासेस. ये तो बिग क्लासेस हैं. क्लास 2 इज लाइक दिस, बट क्लास 2 हैज different subclasses 2A 2B 2 3 या फिर 2 1 like that. Subclass 1 is there so that you can have different kind of like food stuff है. तो food stuff से related भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. food stuffs में किस चीज, कौन से प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ये उस पर डिपेंड करता है. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग ना, देयर यू कैन लाइक, अगर आपको अभी भी देखना है तो आप इंटरनेट पे जाके ये क्लासिफिकेशन सर्च कर सकते हैं डिजाइन का एंड देख सकते हैं कि क्लासेस की सब क्लासेस कैसी हैं. क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, मैं आपको सब कुछ नहीं शो कर सकती यहाँ पर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो हियर, बट यू कैन सर्च.
अब ड्यूरेशन ऑफ राइट क्या होता है, तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन हमें 10 इयर्स के लिए ग्रांट होता है विदाउट पेइंग एनी रिन्यूअल फी। हमने डिजाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही हमारा आ जाता है, हमारे पास 10 ईयर का फुल प्रोटेक्शन है। अगर आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए और रिन्यू करा सकते हैं, तो टोटल आपको 15 इयर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है। एप्लीकेशन फी जैसा मैंने बताया, फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट, एमएसएमई एंड स्टार्टअप इट इज 1000 ओनली। अगर आप एक्सटेंशन कराते हैं, सपोज आपका 10 साल डिजाइन का खत्म होने वाला है और आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं फर्दर 5 इयर्स के लिए, तो आपको 2000 रुपीज देने पड़ेंगे और फिर एक्सटेंशन होगा। सो दिस इज ऑल फॉर द इंडिविजुअल एप्लीकेंट। अगर आप एक कॉर्पोरेट है या अदर देन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, सो द चार्जेस आर डिफरेंट। उसके लिए आपको जो फर्स्ट शेड्यूल में जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चार्जेस हैं किस तरीके की एप्लीकेंट के लिए। रिस्टोरेशन फी क्या होती है, मान लो आपका 10 साल हो गए, आपकी डिजाइन रजिस्ट्रेशन को 10 इयर्स खत्म हो गए और आपको कुछ महीनों बाद याद आता है कि अरे मेरा डिजाइन रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो चुका है और आई वांट टू रिस्टोर इट। तब आप क्या करेंगे, आपको रिस्टोरेशन कराने के लिए ये 1000 रुपीज फी देनी पड़ेगी, प्लस एक्सटेंशन फी भी देनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको कुछ फी देके आपको वापस आपके डिजाइन को रिस्टोर कराना पड़ेगा। कैंसिलेशन पिटीशन, मान लो आपने डिजाइन रजिस्टर करा ली, हो सकता है कि somebody किसी को लगा कि आपने उसका डिजाइन चुराया है और आप फिर अपना डिजाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप कैंसिलेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 1500 उसके चार्जेस होते हैं फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट एंड यू कैन कैंसिल योर डिजाइन रजिस्ट्रेशन। अब एक प्रोविजन है कि अगर आपको रीस्टोर कराना है आपकी डिजाइन का, तो जिस जिस दिन आपके 10 साल होने पे आपकी डिजाइन खत्म हो गई है, उसी दिन से आपको रीस्टोरेशन स्टार्ट करना पड़े। मतलब या तो आप 10 साल बाद तुरंत करा दो, अगर 10 साल बाद 1 साल बीत गया है और फिर आपको ध्यान आया कि अब मुझे डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप नहीं करा सकते। अगर आपको रीस्टोर कराना है तो आप विद इन 1 ईयर, जो जहां से आपका लैप्स हुआ है उसके विद इन 1 ईयर आप करवा लीजिए रिस्टोरेशन, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको शो करना पड़ेगा कि आपका जो आप उसको रिस्टोर मतलब आपने एक्सटेंड इसीलिए नहीं कराया क्योंकि आप भूल गए थे या आपने कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, कुछ अनइंटेंशनल आपको रीजंस देने पड़ेंगे, तभी जाके वो वापस रिस्टोर होगा। और आपका जो प्रोटेक्शन है वो भी बना रहे। हो सकता है आपका डिजाइन लैप्स हो गया और उसमें किसी और ने आपका डिजाइन कॉपी करके मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए आपको रिस्टोर करा के उस समय, जिस समय आपका प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पार्टीज यूजिंग डिजाइन ड्यूरिंग लैप्स, आपको उसकी भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जो प्रोटेक्शन मिलता है थर्ड पार्टीज को यूजिंग द डिजाइन ड्यूरिंग, कोई आपका इन्फ्रिंज करता है प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को इन्फ्रिंज करता है और आपका डिजाइन लैप्स हो गया जिस पीरियड में, तो उस समय भी आपको प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए आपके डिजाइन का, क्योंकि आपने अनइंटेंशनली उसको आप करा नहीं पाए, रिस्टोर नहीं करा पाए, ये रीजन आपको देना पड़ेगा, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि ठीक है इसने आपका इन्फ्रिंज किया था उस केस में। तो इसको हम कुछ केस लॉ के थ्रू समझेंगे। जब आपकी डिजाइन रजिस्टर हो जाती है तो आप प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं रजिस्टर्ड, इस तरीके से आप वर्डिंग लिख सकते हैं। और कुछ डैमेजेस अगर होते हैं, अगर आप नहीं लिखते हैं और आपको कोई डैमेज हो जाता है कल को, आप उस पर नहीं लिखते हैं रजिस्टर और आपका प्रोडक्ट कोई कॉपी करता है, तो आपको फिर आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा डिजाइन रजिस्ट्रेशन का। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन इट इज अंडर द लॉ। हम बहुत ज्यादा लीगल उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। फिर दीज आर दी कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन। अगर आपने डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है तो इन ग्राउंड्स पे आपका डिजाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। प्रीवियसली पब्लिश्ड, अगर आपका डिजाइन कहीं ऑलरेडी डिस्क्लोज है तो ग्रांट नहीं होगा। प्रीवियसली रजिस्टर्ड, किसी और ने रजिस्टर किया है तो आपको ग्रांट नहीं होगा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा स्कैंडलस मटेरियल हो विच इज नॉट एबल टू रजिस्टर अंडर द डिजाइन एक्ट, तो वो नहीं करेंगे। और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन, सपोज आप पेंटिंग को लेके चले गए डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराने, तो वो डिजाइन में नहीं आता, डिजाइन की कैटेगरी में नहीं आता अंडर सेक्शन 2D, तो आप उसको रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इस तरीके से दीज आर द कैंसिलेशन ऑप्शन।
जो सपोज आपको कुछ इंस्पेक्ट करना है कि ये डिज़ाइन रजिस्टर है या नहीं, तो कोई पब्लिकली कोई भी आपके डिज़ाइन को इंस्पेक्ट कर सकता है आफ्टर registration of design. Certified copies are also available on the website. Everybody can check. Information on existence of copyright. अगर आपने सिमिलर कुछ उसका कॉपीराइट भी कराया है उसके किसी मैनुअल का उस डिजाइन से रिलेटेड, तो एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल दैट इज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों का कॉपीराइट एंड डिजाइन दोनों होता है, तो इंफॉर्मेशन उसका कॉपीराइट में भी एग्जिस्ट करता है। सो नाउ पायरेसी एंड इन्फ्रिंचमेंट, ये वो केसेस हैं जो कि लीगल बैटल में जो चले जाते हैं कि अप्लाइंग डिजाइन विदाउट कंसेंट। सपोज आपने कोई डिजाइन है, आपने किसी और ने डिजाइन किया, लेकिन आपने उसका आइडिया लेकर खुद डिजाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, तो उस केस में अगर कल को वो व्यक्ति आपको मतलब आपके ऊपर लॉ सूट फाइल करता है कि इसने विदाउट मेरी कंसेंट इस मेरे प्रोडक्ट को डिजाइन रजिस्ट्रेशन किया है, तो जो राइट्स है अगर वो प्रूफ कर देता है कि आपने ऐसा किया है, तो आपका जो राइट है कि आपका डिजाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद रिवोक हो सकता है। इम्पोर्टिंग एंड इन्फ्रिंजिंग गुड, अगर आप कहीं से गुड्स इम्पोर्ट करते हैं, मान लो आप किसी और कंट्री का प्रोडक्ट है, आपको उसका डिजाइन पसंद आया और आपने इंडिया में आके वो डिजाइन रजिस्ट्रेशन फाइल किया, तो उस केस में भी आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इन्फ्रिंज किया है किसी के प्रोडक्ट को, चुरा कर फिर उसको फाइल किया है। सेलिंग एंड इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिजाइन को सेल करता है विदाउट उसकी कंसेंट से, तो भी उस पे सेक्शन 22 जो कि इन्फ्रिंजमेंट केसेस में आता है वो अप्लाई होगा। सिमिलैरिटी वैल्यूएशन, कैसे लोग जब कोई केस फंसता है या कुछ इस तरीके से लोग इन्फ्रिंजमेंट केसेस होते हैं, उसमें कैसे सिमिलैरिटी निकाला जाता है, जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस टेस्ट करते हैं। सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी वर्सेस आइडेंटिकल कॉपी, जो कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी है, सब्सटेंशियल आइडेंटिकल कॉपी कैसा दिखेगा, वो सारे टेस्ट वो करते हैं। ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर टेस्ट किया जाता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, अगर वो डिफरेंस नहीं उसको समझते हैं तो इसका मतलब वो सब्सटेंशियली सिमिलर है आर्टिकल। और माइनर डिफरेंसेस आर इनरिलेवेंट, अगर आप कहें कि नहीं इसमें एक डॉट, यहाँ पे मान लो दो प्रोडक्ट सिमिलर है और मैं कहूँ कि बस इसमें एक डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, वो डिफरेंस है। सपोज जैसे मैं आपको बार बार इस प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस डिजाइन पैटर्न में कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया वुड का, या फिर यहाँ पर एक मैं कहूँ कि एक होल कर दिया ताकि इसको मैं कहीं पर भी टांग सकूं, तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सो माइनर डिफरेंसेस आर इररिलेवेंट, मतलब इतना सा डिफरेंस करके आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजाइन यूनिक है। सो बहुत सारे जो एनफोर्समेंट इसका जो मैकेनिज्म होता है, somebody is copying you, तो आप सिविल सूट भी उस पर फाइल किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है। और फिर उसके बहुत आगे केसेस हैं, मार्केट सर्वेलेंस किया जाता है, उसके प्रोडक्ट्स को सीज कर दिया जाता है, और जो पिटिशनर होता है उसको पूरे डैमेजेस उसके प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी उसका कमर्शियल लॉस हुआ है उसके बारे में। सो जो कंक्लूजन है वो ये है कि डिजाइन प्रोटेक्शन इज क्रिटिकल फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट if somebody is for a company it is very important, for startups it is very important, and to differentiate between two products design protection is very important. Now registration ensures enforceable rights, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके राइट सिक्योर हो जाते हैं, एंड if somebody is infringing your right you can like फाइल एनी, मतलब आप अपने राइट्स को सिक्योर कर पाते हैं, उस पर केस फाइल कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रजिस्ट्रेशन अगर आप कराएंगे तभी आप अपने राइट सिक्योर कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर एस्थेटिक ड्रिवन इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जो कि एस्थेटिक फीचर्स पे वर्क कर रही हैं और एस्थेटिक फीचर की वजह से ही चल रही हैं, उनके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ लैंडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन केसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड का ये केस है, जो कि जो भारत ग्लास ट्यूब है उन्होंने एक ये देखिए आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिख रहा है, तो उन्होंने ग्लास शीट बनाई और ग्लास शीट पे इस तरीके के पैटर्न्स बनाए थे,
ठीक है, और उन्होंने इस डिजाइन को रजिस्टर कराया था इंडियन पेटेंट ऑफिस के थ्रू। अब क्या हुआ कि गोपाल ग्लास वर्क लिमिटेड ने सिमिलर ये ग्लास का डिजाइन कॉपी करके मार्केट में अपने ग्लास शीट भी बेचना स्टार्ट कर दिया। तो भारत ग्लास ट्यूब ने गोपाल ग्लास पे मतलब लॉ सूट फाइल किया कि आप हमारे डिजाइन को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंटर स्टेटमेंट में गोपाल ग्लास वर्क ने भारत ग्लास वर्क पे ये स्टेटमेंट डाला कि आपका जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन है वही वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने ये किसी फॉरेन में इस तरीके का कुछ ग्लास वर्क होता है उसको आपने कॉपी किया है, कैटलॉग फॉरेन की कोई कंपनी थी उनके कैटलॉग से आपने ये कॉपी किया है। तो जब यहाँ पर जब जो स्टेटमेंट आया उसमें देखा गया कि नहीं, जो फॉरेन का कैटलॉग था उसमें इस तरीके का पैटर्न ऐसा नहीं था, आइडेंटिकल सिमिलर पैटर्न नहीं था, दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न। और ये पता चला कि जो भारत ग्लास ट्यूब थी उनका ये न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन था, और गोपाल ग्लास एक्चुअली में इसको कॉपी कर रहा था, क्योंकि जब विजुअल ओवरऑल विजुअल अपील किसी आई टेस्ट मतलब जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है उससे उसको हम दिखाते हैं कि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब गोपाल ग्लास जो है वो उनका वर्क कॉपी कर रहे थे, और उसको उनको जो कमर्शियल गेन भी उससे काफी हुआ। तो फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भारत गैस जो है उनको रिलीफ प्रोवाइड किया, एंड गोपाल ग्लास जो है उनको सारे डैमेजेस पे करने पड़े। तो इसीलिए अगर अगर उनका डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता भारत ग्लास ट्यूब का, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइल अ केस ऑन गोपाल ग्लास, और उनको काफी कमर्शियल लॉस भी होते। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सेकंड, जो डिज्नी एंटरप्राइजेस है उन्होंने प्राइम हाउस वेयर्स करके बॉम्बे की एक कंपनी है उनपे एक लॉसूट फाइल किया था। उनका कहना था कि जो प्राइम हाउस वेयर है ये डिज्नी के जो डोनाल्ड डक एंड मिकी माउस के फोटोग्राफ्स वाले लंच बॉक्सेस एंड बॉटल्स को वो सेल कर रहे थे। तो क्योंकि डिज्नी ने इनके कैरेक्टर पे कोई डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, बट उनका कॉपीराइट था इन कैरेक्टर का, जो भी इनका फोटोग्राफ है या उनका जो मैं कहूँ कि उस पर उन्होंने कॉपीराइट लिया था डिज्नी के उस पर। तो जो डोनाल्ड डक एंड हमारा मिकी माउस है उनके ऊपर उनका कॉपीराइट था। तो उन्होंने कोर्ट ने ये फाइनली जो जजमेंट आया उसमें यही आया, इवन उनका डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है बट दे आर यूजिंग द सिमिलर पिक्चर ऑन दी बॉक्सेस, या फिर जो भी वो आइटम्स या प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उस पे उनका कॉपीराइट प्रोडक्ट की इमेजेस थी। सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डू इट, और उनको रिलीफ प्रोवाइड किया डिज्नी को इस केस में, बिकॉज दे हैड रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ओवर इट, और उनके जो उनको इंजंक्शन ग्रांटेड अगेंस्ट द इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स, जो भी उनके इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स थे उनको हटाया गया मार्केट से। तो इस तरीके से रिलीफ मिलता है। और सेकंड केस है सेलो वर्सेस मॉडवेयर का। तो सेलो की जो बॉटल थी, मॉडवेयर ने सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन में अपनी बॉटल निकाली। स्लाइटली आप देख रहे हैं डिजाइन डिफरेंसेस हैं, बट अगर हम एक नॉर्मल एवरेज कस्टमर को अगर दोनों बॉटल में विदाउट, अगर मैं यहाँ से टैग हटा दूं और दोनों बॉटल में डिफरेंस करने का बोले तो बहुत मुश्किल होता है डिफरेंस करना। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे पार्ले जी की भी डुप्लीकेट कॉपी वाले बिस्किट्स आते हैं, या बहुत सारी चीजें आती है कि उसमें हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ होता है, बट एक नॉर्मल कस्टमर के लिए, एक एवरेज कस्टमर के लिए आप जब हड़बड़ी में इतना डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो विजुअली ये दोनों तो बॉटल सेम ही दिख रही थी, इसीलिए फाइनली सेलो को इसमें पायरेसी के जो मॉडवेयर है वो पायरेसी उनको उनके ऊपर सेक्शन 22 के अंदर उनके ऊपर पायरेसी का केस आया, एंड सेलो को उसमें जो रिलीफ मिला कि उनके प्रोडक्ट एक्चुअली में इन्फ्रिंज कर रहे थे। भले आपके प्रोडक्ट में भले डिफरेंस हो, बट विजुअली दे आर गिविंग द सेम लुक एंड कलर कॉम्बिनेशन। सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डिज़ाइन को रजिस्टर कराएं, क्योंकि तभी हम रिलीफ हमें मिल सकता है इन्फ्रिंजमेंट केसेस में। ऐसे ही कार्ल्सबर्ग और सोम डिस्टिलरीज का भी एक केस है, जिनका जो बियर बॉटल का डिजाइन था वो समवॉट सिमिलर था। सो
ये क्योंकि बॉटल का शेप जो है वो एस्थेटिक फीचर है, तो ये डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था। और सम केसेस में इनका ट्रेडमार्क डिजाइन भी ओवरलैप कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर इनका था और यहाँ पर भी इन इस तरीके से इनका जो दोनों का ट्रेडमार्क है वो भी ओवरलैप कर रहा था। दे हैव अ डिफरेंट ट्रेडमार्क, बट द पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑन द सेम, जो बॉटल का पोजीशन है वो सेम था ओवरलैप। तो फाइनली इनका भी जो कार्ल्सबर्ग है उनको रिलीफ प्रोवाइड किया गया और सोम डिस्टिलरीज को उस प्रोडक्ट को सेल करने का इंजंक्शन ऑर्डर निकला। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर राइट, क्योंकि अगर जब हम अपने राइट को सिक्योर करेंगे तभी हम किसी थर्ड पर्सन को उसको यूज करने से रोक सकते हैं। अदरवाइज it is about design or patents or any right, any kind of intellectual property right. If you are not securing your right, you are not able to protect it. So that's why it is very important to follow two things before publication. Go and secure your right. Second thing, this is the like, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का इन्फ्रिंजमेंट वैल्यूएशन करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट सिमिलर है या नहीं, तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड डिजाइन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये डिजाइन रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके विजुअल इंप्रेशंस को कंपेयर कीजिए, उसकी कौन सी सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी आती है उसको एवेल्युएट कीजिए, फ्रॉडुलेंट या फिर जो ऑब्वियस लिमिटेशन है उसको भी चेक करिए, वेरीफाई करिए कि ये कंपनी को मैच करती है या नहीं। और अगर नहीं करती तो फाइनली यू विल कंसीडर द रेमेडीज अगेंस्ट सेक्शन 22। आपको कुछ रेमेडीज आप जब इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करेंगे, so there will be the remedies provided under section 22. So this is all about design registration. So I have gone through what is design registration, the filing procedure, and the infringement, some of the infringement cases I have also covered over here. So if you have any doubt regarding the design registration, you can ask me. So shall I stop my presentation so that I can see you and check if you want to ask any questions? Yes, ma'am. Hello, participants. If you have any question, please drop it in the chat box or feel free to unmute yourself and ask. Okay, so Pooja has asked me that, ma'am, can you explain about the views again? So, like views, when you are securing a design on a 3D product, for that case, you need to present the 7 views. 7, one is isometric and perspective view. Isometric view means आप इस प्रोडक्ट को ऐसे रखते हो तो 3D में दिखना चाहिए, जैसे इस तरीके से रखा है। सपोज मैंने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से रखा है, so that will be a like isometric or perspective view. So front view will be this, back view will be this. This is right hand side view, this is left hand side view, this is top view. अगर आप यहाँ से पिक्चर खींचेंगे तो टॉप व्यू आएगा, एंड यहाँ से पिक्चर अगर मैं खींचूंगी तो यहाँ से बॉटम व्यू आएगा। तो इस तरीके से सारे व्यूज हमें 7 व्यूज कवर करने हैं, ठीक है। Can we send this PDF, the one shown in the webinar? I हम don't understand. YouTube पे अपना वीडियो, ये ऑनलाइन वीडियो है ना, वो YouTube पे अपलोड करेंगे। If anyone has any more question, please go ahead. If it is second 2D product, okay, if it is 2D product, then जो आपकी फ्रंट सिर्फ आपका टॉप व्यू आएगा, टॉप व्यू में आपका प्रोडक्ट दिखेगा, अदर व्यूज आर लाइक लाइन, ऐसे लाइंस दिखेंगी बस और कुछ नहीं, सिर्फ पैटर्न आपका कवर होगा। बैक व्यू आपका वो सिमिलर पेपर दिखेगा, जैसे मैं 2D व्यू को कवर करती हूँ, तो सपोज ये इतने ही चीज को कवर करती हूँ, तो मेरा टॉप व्यू तो यही दिखेगा, बॉटम व्यू में मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सो इट्स लाइक दैट, उसके बाकी फिगर्स में सिर्फ एक लाइन दिखेगी, दैट्स इट। Yes, we need to give. So Nilesh has asked, good evening and thanks for amazing and the age.
So you're asking about the patent. Okay. So according to um, according to the Indian Patent Act, microorganisms are patentable. Okay. I don't know about human genes because I am not from the biological background, but still, that I have learned that they are not patentable, but microorganisms are patentable. So for સ્કૂલ છે micro, સર, હું નથી કહેતી હવે એને વર્ડ ઓફ સાયન્સ આપવાનું આવેલું. so for microorganisms, you need to submit that जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको सबमिट करना पड़ता है माइक्रोबियल अथॉरिटी है इंडिया में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिटिंग अथॉरिटी है वहां पे आपको वो सबमिट करना पड़ता है बिफोर फाइलिंग योर पेटेंट एप्लीकेशन, एंड यू नीड टू गिव द रेफरेंस नंबर. जो आपका सबमिशन रेफरेंस नंबर होता है वो आपको पेटेंट एप्लीकेशन में साइट करके देन यू कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन. सो दैट इज पॉसिबल. So are you satisfied, Nilesh, or you want to ask something? Like आप पूछ भी सकते हैं unmute करके. Anyone question? Please go ahead. आप अपनी कोई छोटा भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछना है ताकि इफेक्ट पड़े. आपके दिमाग में अगर कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हैव यू अटेंडेड एनी काइंड ऑफ लाइक डिजाइन? आपने इसके पहले किसी ने अटेंड किया था डिजाइन, मतलब आपको जानकारी थी डिजाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में? You can write it in chat box. What about international design registrations? So see, there are different treaties. So one is a Hague design registration. So with that you can like file internationally. जैसे patents file कर सकते हैं through PCT and conventional registration. But India is not the part of Hague treaty. रियाद का भी इंडिया ने साइन किया है ट्रिटी, तो एक अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसके लिए, इंटरनेशनल डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए. लेकिन जो हेग रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू हम फाइल कर सकते हैं, बट इंडिया ने अभी वो साइन नहीं किया ट्रिटी. तो या तो हम डिफरेंट अलग कंट्रीज में जो रूल्स हैं वो फॉलो करके हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेपरेट डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में. बट with a single application to file in different countries, there are some treaties. India अभी उसका पार्ट नहीं है कुछ treaties का, कुछ का है. So I am not more into that. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, because मेरा बहुत सारा वर्क पेटेंटिंग पे ज़्यादा होता है, तो I have more information regarding patents. With yeah, there are some treaties with which we can file, but I don't know that who are the country who are part of that treaty. अगर हम उस treaty का part हैं जिसका दूसरी भी country part है और हम उसी country में file करना चाहते हैं, तो we can file with the help of that foreign filing facility. But on the other hand, if we are not part of that treaty, we cannot file. But if we are filing separately to the other country, so yes, we need a foreign design agent for that. क्योंकि फॉरेन डिजाइन एजेंट की जरूरत अगर हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन में आगे भी पहुंचते हैं, भले हम यहाँ से डायरेक्टली भी फाइल करते हैं इंटरनेशनल फाइलिंग फैसिलिटी के थ्रू, बट if we are getting any objection from that particular country, in that case also we need a foreign design attorney.
to reply to that objections, because he's the only one who can prosecute in that country. The second thing, if we are directly filing into a country who is not part of any treaty, so we need to hire a foreign design agent in that case. Any other questions? Okay, I think there is no more question. Okay. Thank you, ma'am. On behalf of Spriha Saurashtra University, SUSEC, and IIC Saurashtra University, I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining today's webinar on understanding industrial design. First and foremost, we express our sincere thanks to our esteemed speaker, Ms. Aparna Pandharkar, ma'am, for sharing valuable insight, case studies, what is industrial design, and practical knowledge. Your session has truly enriched our understanding of industrial design and its relevance in innovation and IP protection. We also thanks our university, our IPR chair, Professor Parth Sejpal sir, faculty members, innovators, students, and participants for their support and active involvement. We hope today's session has sparked new ideas and encouraged you to uh, take the next step in securing your intellectual property. We are ending the meeting now. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Anjali. I'm leaving now. Thank you.